Hello students, Nahid here. Welcome to a new class. In today's class, we are going to understand comprehension and most importantly, how to answer unseen comprehensions in the exam. बिकॉज बहुत ही लंबा सा एक कॉम्प्रीहेंशन चेक आता है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे. दिस इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर एच फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, एंड एट द सेम टाइम इट्स देयर इन क्लास 10 and in the higher classes as well. So anybody is watching this, it is going to be beneficial for you. So पहले ये समझते हैं कि comprehension actually होता क्या है. Comprehension generally means to comprehend. नाउ कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, मतलब तुम कितना समझ सकते हो. नाउ सी, अनसीन पैसेज मतलब एक ऐसा पैसेज दिया जाएगा पढ़ने के लिए with complete and thorough understanding of the passage will be demanded. मतलब एग्जामिनर ये चाहेगा कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, how much do you understand after reading it. Now there are ways of answering it, there are some tips that you need to follow, and कुछ procedures हैं, कुछ थोड़े छोटे छोटे guidelines है. there is nothing big and broad here, तो कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं that you have to see here. Main objective of comprehension is to test one's ability to grasp the meaning of a given passage. So as I told you already, it is an ability test, whether you how nicely do you understand on your own when you read a passage. इसी चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाएगा, उसका मीनिंग कितना क्लियरली तुमको समझ में आ रहा है. एंड एट द सेम टाइम जस्ट अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट एवरीथिंग. यू हैव टू बी एबल टू आंसर इट. समझने के बाद, क्योंकि अ कॉम्प्रीहेंशन विल बी फॉलोड बाय सम क्वेश्चंस, एंड द क्वेश्चंस माइट बी multiple choice questions or short answer questions, and sometimes a little descriptive questions, maybe their word meaning, synonyms, other things may be included in it. तो इसको आंसर करना भी आना चाहिए. सो इट इज़ दिस वे. अगर हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, देन ओनली हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से जो है उसका आंसर हम लोग कर सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो बात बोला गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, टू आंसर इन one's own words. खुद के शब्दों में यू हैव टू आंसर इट. यू कैन नॉट directly copy paste it. No copy pasting. I'm repeating, you cannot, you should not copy paste if it is short answering, or they're demanding you to write an answer or an interpretation. The questions based on the passage, questions simply जो है passage के ऊपर based on होगा. So you just have to read the passage and read the questions and try to find out the answers. So as I said, variety of questions रह सकते हैं, short type questions रह सकते हैं, completion और incomplete sentences रह सकते हैं जिनको complete करना पड़ सकता है, fill in the blanks रह सकता है, and exercises रह सकते हैं, vocabulary exercises, write the synonym, antonym, meaning, all these things यहाँ पे आ सकते हैं. So you have to keep that in mind. And also अभी का ट्रेंड चलेगा, तो अगर हम लोग देखें तो MCQs आने के भी चांसेस हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इस तरह के पैसेजेस पूछ सकते हैं. सो कीप ऑल दोज थिंग्स इन योर माइंड. नाउ सी, बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द पैसेज, इट इज़ नेसेसरी टू रीड द पैसेज again and again. तो हम लोग यहाँ पे नीचे टिप्स के बारे में बात करेंगे, बट यू हैव टू रीड द पैसेज टाइम एंड अगेन, एंड यू हैव टू हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट मीन्स एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. बिकॉज विदाउट हैविंग अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज हम लोग क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे, उसको आंसर नहीं कर पाएंगे. नाउ अ lot of students will ask कि what to do if there are bigger words or strong vocabulary अगर हम नहीं समझते पैसेज को. See, you don't have to have the entire vocabulary in your mind. कभी कभी बड़े words हो सकते हैं, और you might come across a new word जो तुम्हें बिल्कुल ही पता ना हो. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन को बार बार पढ़ के उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं. बिकॉज it is final time, it's the exam time, and there is no way you can open up your dictionary and do that, and you cannot possibly hope for the help from someone. So जैसे मैंने कहा, जनरल आइडिया फॉर्म करना पड़ेगा पढ़ के, बार बार पढ़ के. अब किसी बार बार बोले तो अभी किसी के लिए सम स्टूडेंट्स आर देयर जो 2 बार में पढ़ के ही उसको मतलब क्लियर मीनिंग उसका ग्रैस्प कर लेते हैं. किसी स्टूडेंट के लिए 3 बार चाहिए होता है, किसी के लिए 4 बार चाहिए होता है. एंड एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स just need one reading, but I recommend at least 2 बार तो पढ़ें definitely. So once the passage is clear, that means the idea of the passage is clear, you know who's what and what's up, it is easy to answer the questions. Now here you see,
There are certain key points that you have to keep in mind while answering questions from an unseen passage. We are talking about unseen passage only. सबसे पहले we have to read the passage, okay? Quickly passage को read करना है, because you know I often tell students 12 मिनट 10 से 12 मिनट के अंदर हमको जो है ये पैसेज का काम ख़त्म कर लेना है, बिकॉज एग्ज़ामिनेशन जो पेपर होता है वो बहुत बड़ा पेपर होता है, तो 10 से 12 मिनट के अंदर हमको काम जो है वो ख़त्म करना, मतलब इसको आंसर करके फिनिश कर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्विकली इसको पढ़ना पड़ेगा और इसका जो जनरल आइडिया है उसको हमें जनरेट करना पड़ेगा. दैट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट, मेन कैरेक्टर क्या है, उसके साथ क्या हुआ है, इवेंट्स एंड एवरीथिंग. तो इस सारी चीज़ों को, सब्जेक्ट मैटर को समझना पड़ेगा ना. उसी पैसेजेस बहुत तरीके के पैसेजेस हो सकते हैं. और डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो सकता है, करंट अफेयर्स के ऊपर हो सकता है, जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या फिर करंट इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है, करंट इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है. अदर देन दैट जियोग्राफिकल इशू हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है. इस तरह से बहुत से टाइप के पैसेजेस वहाँ पे हो सकते हैं. तो इट डजेंट मैटर, ये तो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है. इफ़ यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 पैसेजेस तो आई वुड से यूर गुड टू गो. कम से कम 20 पैसेजेस तो करने पड़ेंगे. एंड पैसेजेस कहाँ पे मिलेंगे? सम आई शैल बी प्रोवाइडिंग, एंड बाकियों के लिए यू कैन जस्ट लिटरली फॉलो एनी ग्रामर बुक. उसके पीछे पड़ा हुआ रहता है. कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक उठा लो, उसके पीछे बहुत से कॉम्प्रिहेंशन पड़े रहते हैं, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन इज सच ए कॉमन ग्रामर थिंग दैट एवरीबडी टेस्ट्स इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो इससे मतलब, एंड ऑल्सो वी हैव गूगल एंड ऑन इंटरनेट, सो वहाँ से आराम से मिल जाएगा. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नीड टू रीड इट क्विकली. जैसे मैंने कहा, एक बार 2 बार जिसका जो है मेंटेनेंस, जिसका कैपेसिटी जितना है उसको समझने का, जनरल आइडिया को हमको जनरेट कर देना है. इतने टाइप के जो है वो पैसेज हो सकता है. ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकेंडली, यू हैव टू रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसको हम लोग 2 नंबर बार जब पढ़ेंगे, पहले एक बार तो उसको हम पढ़ के जनरल आइडिया जनरेट करेंगे. सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे, एटलीस्ट मैंने जो कहा ना, 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा. So when we read it for the second time, we're going to underline the important points. So make sure when you're underlining the main points in the examination, you use a pencil, or do not use any pen on the question paper. That might be, it might be prohibited in the exam. Generally prohibit किया हुआ रहता है, so you shouldn't do that. So pencil से ही mark करो important line जो तुमको लगता है. And thirdly, you just directly go and read the questions and try to know what has been asked. So उसके बाद पैसेज को एक बार फिर से पढ़ो, और जहाँ जहाँ उन क्वेश्चंस के आंसर्स है वहाँ पे तुमको ऐसे ब्रैकेट करना है. दैट इज़ जस्ट ब्रैकेट कर, आई मीन इफ़ यू वांट टू गिव इट, ब्रैकेट देना चाहते हो तो दे सकते हो, ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट रिकमेंडेड ये कि ब्रैकेट देने से थोड़ा अच्छा रहता है और कुछ नहीं है. अगर बड़ा पैसेज है ना तो ढूंढने में टाइम सेविंग रहता है ना. आंसरिंग की अगर बात करें, इतना कुछ तो हमने कर लिया. आंसरिंग की अगर हम बात करें तो यू हैव टू यूज़ योर ओन वर्ड्स. मेक श्योर यू डोंट कॉपी पेस्ट. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कॉपी पेस्ट नहीं करना है. उस जो भी वहाँ पैसेज में बोला गया है, कुछ फैक्ट्स जो है हम उनको चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल डेट्स, मंथ्स एंड नेम ऑफ द पीपल, वी कांट चेंज दैट. बट उसको जो लिखने का तरीका है वो तुम्हारे खुद के शब्दों में होना चाहिए. माने वट एवर यू सी देयर यू हैव टू राइट इट, बट यू हैव टू राइट इट विथ योर ओन लैंग्वेज, विथ योर ओन अंडरस्टैंडिंग. आंसर करने की कोशिश करें, एंड आंसर शुड बी प्रिसाइज, टू द पॉइंट होना चाहिए. जो क्वेश्चन में पूछा है वही आंसर होना चाहिए, और आंसर ब्रीफली होना चाहिए. यू शुड नॉट बी इलाबोरेटिंग इट टू मच, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से बचना है. नंबर 6 इज ऑलवेज यूज कंप्लीट सेंटेंसेस. हमेशा आंसर्स जो है वो कंप्लीट सेंटेंसेस में करना है. डोंट आंसर विथ येस और ए नो क्वेश्चन, आई मीन येस और ए नो रिस्पॉन्स. फुल सेंटेंस में आंसर करना. इवन इफ समबडी इज आस्किंग व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस इज दैट. तो इस तरह से फुल सेंटेंसेस में आंसर करना है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स और फ्रेजेस, और तो अगर तुमको पता है देन वेरी गुड, यू विल राइट द मीनिंग. इफ़ यू डोंट नो, एक्सप्रेस योर आइडिया. बार बार पढ़ के उन वर्ड्स को बार बार पढ़ो, एंड वट एवर यू अंडरस्टैंड क्लियरली पॉसिबल उसका मीनिंग तुम लिख दो. एज आई सेड, बोम्बास्टिक वर्ड से डरना नहीं है. बड़े वर्ड्स कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं. एंड लॉट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 70-80% टाइम्स जो है इंटरप्रेट करके जो हम लिखते हैं वो सही हो जाता है. नंबर 8 इज़ डोंट गिव योर ओन ओपिनियन. ओपिनियन नहीं देना है, कमेंट्स नहीं करना है, अनलेस द क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू यू. इफ़ द क्वेश्चन इज डिमांडिंग दैट यू शुड, इट वांट्स योर ओपिनियन, व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू यू,
फिर कमेंट्स देनी है, फिर ओपिनियन देना है. अदर देन दैट देयर शुड नॉट बी एनी ओपिनियन, देयर शुड नॉट बी एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड. जैसा है पैसेज में उसी के बेसिस पर लिखना है. ओके, सो दिस आर सम फ्यू पॉइंट्स, इनको दिमाग में रखना है. एक बार देख लेने से भी होगा ये वीडियो, इसमें उतना कुछ खास नहीं है. एंड देन आई सेड एटलीस्ट 20 पैसेजेस को प्रैक्टिस करो. कुछ मैं सेंड करूँगा, डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू सेंड ऑल द पैसेजेस, है ना. 20 पैसेजेस बहुत लंबे होते हैं. सो यू डू as many as you can do on your own, and yeah, I will send you some. And if you have any questions, you feel free to ask me, and I'll see you with a new class. Bye bye.